Hello students, in this video we are going to solve some questions of continuity based on intervals. So here are questions. Show that the function fx equals to, these are functions and these are intervals. So these functions comes between these intervals. Three sets of intervals is continuous at x equals to 2. So we have to find out is this function is continuous at x equals to 2. So we will first find the value of the function. So let's get started. Here f2, first put the value of 2 in function at x equals to 2. Which interval, which function will come at x equals to 2? So as you can see in this question at x equals to 2, here is x equals to 2, यहाँ पे x equals to 2 है, तो ये वाला इंटरवल आएगा 2x square minus x 2. So write this function and put the value of x equals to 2. So our answer is 8 minus 2, 6. Next we will find left hand limit and right hand limit. Left hand limit and right hand limit. Right limit, left hand limit first of function fx, and then right hand limit at x equals to 2. सो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, ये मेन पॉइंट है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। इंटरवल क्वेश्चन, इंटरवल वाले जब भी क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमें क्या रहना चाहिए, उसका x की वैल्यू ऑलवेज स्मॉलर देन 2। तो इसमें आपको दिख रहा है x इज स्मॉलर देन 2, इस वाले इंटरवल में आ रहा है इक्वल्स टू 2 एंड स्मॉलर देन x इज स्मॉलर देन 2। तो ये वाला आपको फंक्शन आएगा इधर पे लेफ्ट हैंड लिमिट में। और इसमें आप लोगों को दिख रहा है राइट हैंड लिमिट है, तो जैसे राइट हैंड लिमिट है तो 2 हर समय x की वैल्यू क्या रहनी चाहिए राइट हैंड लिमिट में, ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे है x इज ग्रेटर देन 2 जब रहेगा तो फिर ये क्या रहेगा ऑलवेज यहाँ पे, क्योंकि ग्राफ के उस साइड हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे 5x माइनस 4 आएगा इसमें फंक्शन। सो इसको भी हम लोग h मेथड से सॉल्व करेंगे। नो नीड टू राइट हियर h, सिंपली राइट पुटिंग by putting x equals to तो by putting x equals to what is here at point 2, we have to find continuity at point 2। so 2 लेफ्ट हैंड लिमिट में ऑलवेज क्या करना है 2 माइनस एच, एंड राइट हैंड लिमिट में x इक्वल्स टू 2 प्लस एच, एंड एज h टेंड्स टू 0, एज h टेंड्स टू 0 limit of the function
2, put the value of x here, 2 minus h minus 2 minus h as h tends to 0. Same, put the value of x here, 5, 2 plus h minus 4 as h tends to 0. Solve these questions. Put the value of 0 here. जहाँ जहाँ पे h है वहाँ पे आपको h की वैल्यू 0 पुट कर देना है. तो 2 इंटू 2 हो जाएगा ये -2. So our answer is, here is 2 square, so put here square, and here is no any. Answer is 6. Here answer is also 6. So as you can see here, all the value of function, limit, left hand limit and right hand limit are equal, and that is equals to 6. Therefore function f is continuous at x equals to 2. Next question is, discuss the continuity of fx. Fx here is a value of fx if x is not equals to 1 and if x is equals to 1, where m belongs to n and capital N is set of all natural numbers at x equals to 1. सो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, कंटिन्यूटी फाइंड करना है आपको एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे. तो हम लोग को जस्ट इसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन. सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 1 इज हियर x equals to 1. So we have to take this function equals to m minus 1. So value of the function is m minus 1. Now we will find left hand limit. Left hand limit equals to function. Left hand limit x equals to 1 minus. So here as you can see x is not equals to 1. अब जब भी ये लेफ्ट हैंड लिमिट जब वैल्यू ऑफ द फंक्शन था, जब x इक्वल्स टू 1 था तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपने फाइंड किया. बट यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, मतलब कोई भी जैसे सपोज दिस वन इज अ ग्राफ. अगर ये कोई ग्राफ है तो आप 1 पॉइंट पे, सपोज x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 पॉइंट पे, ये इसका एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं ग्राफ बना रही हूँ. इसको जस्ट सपोज कर लीजिए कि अगर ये कुछ ग्राफ यहाँ से बन रहा है और ये इस तरीके से ग्राफ बन रहा है ये, तो यहाँ पे 1 पॉइंट पे हमें यहाँ पे एट पॉइंट 1 हमने ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमारा निकला. बट हमें क्या करना है, अभी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना है, या फिर पॉइंट समवेयर यहाँ पे है कहीं पे, तो इधर से ये लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग फाइंड कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम लोग समवेयर कहीं पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कर रहे हैं, मतलब वो एग्जैक्ट एट 1 पे नहीं होगा, x इक्वल्स टू 1, उससे पहले होगा ये. तो उसमें हम क्या ले रहे हैं, नॉट x इज नॉट इक्वल्स टू 1, मतलब लेफ्ट, आप लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं तो समवेयर इधर के साइड होगा, 1 से पहले होगा. तो हम ये वाला इसका लेंगे, x इज नॉट इक्वल. जब भी राइट हैंड लिमिट इस टाइप से आपको क्वेश्चन आए और जब भी एट x इक्वल्स टू 1 आए तो वैल्यू ऑफ फंक्शन आपको जहाँ पे x इक्वल टू 1 रहेगा या फिर x इक्वल्स टू 2x की जो भी वैल्यू होगी, तो आप ये वाला फंक्शन लेंगे. जहाँ पे x इक्वल्स टू वो आए उस पॉइंट का
वहाँ पे हो, मेंशन हो, तो वो वाला आप लेंगे। बट अगर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू 1 या 2 जो भी रहेगा, उसमें जो भी पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी फाइंड करना रहेगा, तो उस पॉइंट पे आपको क्या करना है, नॉट इक्वल्स टू जो रहेगा वो नंबर, वो वाला आप लेंगे, तो वो वाला फंक्शन लेंगे। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड में क्या लेंगे, ये वाला दिस फंक्शन लेंगे, 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर m 1 माइनस एक्स। सो ये हमारा फंक्शन है, बट ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है। बट यहाँ पे क्या है, जैसा कि आप इसको कंपेयर करेंगे, मैंने फर्स्ट पार्ट जो इस चैप्टर का ये कंटिन्यूटी का मैंने वीडियो बनाया, उसको आप देखेंगे। मैंने कहा था कि ये कुछ रिजल्ट्स है, सम रिजल्ट्स ऑफ कंटिन्यूटी, तो इसको आपको वैसे ही जस्ट आपको देख लेना है एक बार, और इसकी वैल्यू आपको माइंड में रखना है। सो इसको इससे कंपेयर कीजिए आप, जो मैंने बताया था, x टेंस टू a, xn माइनस an, x माइनस a इक्वल्स टू n a n माइनस 1। सो अगर मैं इसको इस तरीके से चेंज कर दूं, इस लिमिट को x माइनस 1, x की वैल्यू अगर -1 में कॉमन ले लूँ, एक्स m माइनस 1 कर दूँ, और यहाँ से भी -1 कॉमन ले लूँ, x माइनस 1, तो माइनस ये ऊपर का भी न्यूमरेटर का भी आएगा, डिनोमिनेटर का भी आएगा माइनस, तो वो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा है। तो इससे अगर हम ये कंपेयर करें इस चीज़ को, तो ये हमारा क्या आ जाता है, यही आंसर, ये यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला आंसर इस टाइप से आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, x की पावर m है, तो ये m आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, a की जगह 1 है यहाँ पे, है ना, और a की जगह 1 है, तो 1 का पावर क्या आ जाएगा, m माइनस 1। तो हमारा ये आंसर आ रहा है यहाँ पे। तो ये ओवरऑल आंसर क्या आएगा, m, जो कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन से डिफरेंट है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, m माइनस 1, और हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, m। तो बोथ आर इक्वल। इज दिस इक्वल और अनइक्वल? यस। तो वी विल राइट सिंस so this value is not equals to the value of the function. Value of the function is m minus 1, and our left hand limit is the value of our left hand limit is m. So no need to find the value of right hand limit. मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि अगर कोई भी लिमिट, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, कोई भी अगर वैल्यू ऑफ द फंक्शन से डिफरेंट आएगा, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो ये इसका आंसर अनइक्वल आ रहा है, तो आपको नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। नो नीड टू फाइंड राइट हैंड लिमिट। फंक्शन f इज़ नॉट कंटिन्यूअस, सो फंक्शन f इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1. That's it for this video. In next video we will solve some other examples. Thank you for watching.